right? Let's start with first 6 question I am doing. You tell me if you get the right answer or wrong answer. Okay, the first question, a ball is thrown straight up. What is velocity and acceleration at the top? एक बॉल को ऊपर थ्रो किया and it is at the highest point. What is the velocity here and what is the acceleration here? So velocity will be 0. The velocity will be 0 and the acceleration will be equal to g, which you can take as 9.8 meter per second square, right? सबका ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछ लो. Second, what does speedometer of a car measure? Speedometer क्या measure करता है? Speedometer measures Instantaneous speed. right. Speedometer measures instantaneous speed. समृद्धि, तुमको मालूम है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? नहीं. जब हम मीटर में देखते हैं तो रीडिंग हमेशा बदलती रहती है ना? जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो मीटर में रीडिंग हमेशा चेंज होती रहती है. नीडल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. तो किसी भी मोमेंट पे जब हम स्पीडोमीटर में देखते हैं, उस इंस्टेंस पे जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, राइट? और पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको टाइम से जब डिवाइड करते हैं तो वो उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. ओके, अभी फॉर द टाइम में कितना, बाकी फिर बाद में पूछ लेना मेरे से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. It is possible that displacement is 0 but not the distance. Explain. डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस नहीं है. इफ वी टेक ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, या कोई भी ऐसा मोशन जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो. एक सर्कुलर मोशन में यहाँ से शुरू किया और यहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा, राइट? Displacement will be 0 but distance will not be 0. 4. Can the velocity of a particle change even if its speed is constant? Velocity change हो सकती है क्या जबकि speed constant हो? Yes, sir. कब? So the object is circular motion. Right. If it is uniform circular motion. If it is uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन चेंज होती है तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होती रहती है. स्पीड कांस्टेंट होगी बट डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज वेलोसिटी मीन्स स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? Now, question 5. State in each case if the motion is 1, 2 or 3 dimension. Okay. If the motion is 1, 2 or 3 dimension. 1 dimension motion कौन सा होता है? Straight line. 2 dimension कौन सा होता है? In a plane बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन. एक प्लेन में है लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं है. एंड 3D रैंडम मोशन बट नॉट इन प्लेन, बट नॉट इन प्लेन. कोई भी रैंडम मोशन जो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है? अ काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे. A kite flying on a windy day will go like this and then this way.
So that become what? 3D. So first is 3D. Second, an ant moving in a zigzag path on a horizontal floor. ऐसे zigzag path में floor पे move कर रही है. तो floor means it is in a plane. एक plane में है, एक plane में है तो it will be 2D, right? A speeding car on a long straight highway. 1D. A speeding car on a long straight highway, that will be 1D. A carom coin rebounding from the side of the board. A carom coin which is rebounding from the side of the board, that will be in a plane but not in a straight line. So this will be 2 dimension. And then a planet revolving around its star, that is a circular path. A circular path is 2 dimension. Okay? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं. Now question 6. Can a body be said to be at rest as well as in motion at the same time? Yes. ये एक मूविंग बस है. मूविंग बस v स्पीड से मूव कर रही है. इसमें 2 लोग बैठे हैं. A and B. एंड ये C कहीं यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है. So then B is at rest with respect to A, but B is in motion with respect to C. A और B दोनों बस में बैठे हैं, तो B की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होगी. A और B दोनों वहीं के वहीं हैं, तो उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी. तो इसलिए B is always at rest with respect to A. बट C के लिए ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो C के लिए पोजीशन चेंज हो रही है, तो B is in motion with respect to C. So that's why an object can be at rest as well as in motion at the same time. Okay? Yes, sir. Right. नाउ 7th मैंने बोला था छोड़ने के लिए. 8th हो गया. Yes, sir. 8th सबका हो गया. Yes, sir. ओके. 9th. ओके. नाउ 9th. दिस इज ग्राउंड. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया. लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B. इसको ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसको थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 150. इसकी वेलोसिटी है 150. And the distance between the two is 300 meter, right? अब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, एंड दोनों इस पॉइंट पे कोलाइड कर जाएंगे, राइट? ये पॉइंट ले लो C. Let us suppose it travel a distance h before collision. The B traveled a distance h before collision. So then how much distance A has traveled? A ने कितना distance travel किया? 300 minus H. पूरा का पूरा 300 था. h इसने travel किया, तो A ने travel किया 300 minus h. इतना क्लियर है?
Now let us suppose the collision took place at time t. जो कोलिजन हुआ वो t टाइम पे हुआ. जब इसको ऐसे ड्रॉप किया, इसको ऐसे थ्रो किया, तो ये इस तरह से गए. तो जब हमने ड्रॉप किया या जब थ्रो किया, क्योंकि वो तो एक टाइम पे किया, उससे t टाइम बाद दोनों कोलाइड कर गए. उससे t टाइम बाद दोनों कोलाइड कर गए. तो यहाँ से t टाइम बाद कोलाइड कर गए. ओके, अब हम यूज करेंगे इक्वेशन h is equal to ut plus half gt square. We will use the equation h is equal to ut plus half gt square. Right? First, for a, height कितना? For a height is 300 minus h. u कितना? 0. टाइम तो t है, प्लस हाफ g t square. So we can write 300 minus h is equal to half g t square. Let's say this is equation 1. Now for b बोलो, height कितना होगा? h. For b height is h, velocity is 150, time is t, minus half g t square. Why we took minus? क्योंकि अपवर्ड मोशन है तो रिटार्डेड होगा. ओके, राइट. अब हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहां रख दूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दी. तो h इज इक्वल टू 150t माइनस 300 प्लस h कैंसिल हो गया. तो 150t is equal to 300 and we get t is equal to 2. So they will collide after 2 seconds. यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को पूछना है तो बोलो. कुछ पूछना है किसी को? अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? h. तो h कितना है? ये h इज इक्वल टू 150 इंटू 2 माइनस हाफ g की जगह 9.8 इंटू 2 स्क्वायर. सो दैट इज 300 माइनस 19.6. So that is 280.4 meter. So they will meet at this height. इस हाइट पे मिलेंगे. ठीक है बच्चों? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes. Now question number 10. ये हटा दूं? Question number 10. A particle experiences constant acceleration for 20 seconds. It travels a distance s1 in first 10 seconds and distance s2 in next 2 seconds. This is what A to B and then C. This distance is s1, this distance is s2, and say both the motion are with a speed, a acceleration. So we have to find the ratio of s1 to s2. Now रेस्ट से शुरू हुआ था तो u is equal to 0, right?
तो हम क्या करेंगे, फॉर मोशन A to B and we will use the equation, कौन सा यूज करें, ये टाइम दे रखा है ना मैं 10 सेकेंड एंड ये टाइम भी 10 सेकेंड, कौन सी इक्वेशन यूज करना सही रहेगा? Sir, S is equal to half AT square. राइट, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि U तो 0 है। तो S1 is equal to 0 into 10 plus half into A into 10 square. So S1 is equal to 50A. Right? That is first equation. अब देखो S2 के लिए मुझे B से C जाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले मुझे B पर स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं A to C चला जाऊं तो फिर मुझे इनिशियल स्पीड रेडीमेड मिलेगी। सो दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर मोशन A to C। A to C, तो A से C तक डिस्टेंस कितना हुआ, S1 प्लस S2, U तो 0 हाई है, और टाइम A से C तक 20 प्लस हाफ A इंटू 20 स्क्वायर। So that will come as S1 plus S2 is equal to 200A. Now S1 plus S2 is 200A, but S1 is what? 50A. 50A plus S2 is 200A. So we get S2 is equal to 150A. Now S1 upon S2 is equal to 50A upon 150A, and then A cancel, so 1 by 3. Clear? Sir, मैंने यहाँ पे 8-10 दे दिया था। हाँ कोई बात नहीं, 8-10 लेते नहीं है वैसे इसमें, क्योंकि इट इज़ नॉट अप एंड डाउन मोशन है ना, बट क्योंकि एक कैंसिल हो गया तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा 10 लेने में, बट ऐसे लेते नहीं हैं, क्योंकि वो हम अप एंड डाउन मोशन होता है तो लेते हैं। Okay, sir. नाउ 11, ये नोट कर लिया। नाउ 11, एक जगलर ऊपर बॉल फेंकता है, कितने टाइम इंटरवल पर? 1 सेकेंड पे। तो वो 1 सेकेंड टाइम इंटरवल पे बॉल थ्रो करता है, और सेकेंड बॉल कब थ्रो करता है? जब पहली वाली हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। ही इज थ्रोइंग लाइक दिस, तो जब फर्स्ट बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो वो सेकेंड बॉल थ्रो कर रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। सो टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड। एंड हमको हाइट निकालनी है, राइट? हमको हाइट कैलकुलेट करनी है, टाइम हुआ 1 सेकेंड। कैसे करेंगे? देखो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। अगर टाइम A to B 1 सेकेंड है तो टाइम B to A भी 1 सेकेंड होगा ना? बट वेलोसिटी एट B इज व्हाट? 0। तो हमारे सामने दो तरीके हैं। अगर हम नीचे से ऊपर को चलते हैं तो पहले हमें U कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो U हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से काम कर सकते हो। ओके, राइट? तो पहले नीचे से ऊपर चल लेते हैं। मान लो इसको U स्पीड से थ्रो किया,
तो v फाइनल स्पीड कितनी है? 0। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस g और टाइम वर्क, तो u इज इक्वल टू g. You can take it 9.8. Okay. Now h is equal to ut minus half gt square. So, u 9.8 into 1 minus half into 9.8 into 1 square, that is 9.8 minus 4.9. So this will be 4.9 meter. So the height is 4.9 meter. Okay. ठीक है. हाँ 10 लेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर. 10 लेंगे तो 5 आ जाएगा और 9.8 लेंगे तो 4.9 आ जाएगा. और अगर हम ऐसे करते हैं कि ऊपर से नीचे आया, अगर हम ऐसे करते हैं ऊपर से नीचे आया कितने टाइम में? 1 सेकेंड, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने का लगता है उतना ही नीचे आने का लगता है. तो इस केस में u इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. तो हम सीधे h इज इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो सीधे सीधे 4.9 मीटर आ जाएगा. योर चॉइस, आप कैसे भी कर लो. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट कौन सा बताऊं? 12 हमने किया था. ओके, 12 तो हमने लास्ट क्लास में ही किया था, है ना? 13 हो गया तुम लोगों का? नहीं, चलो 13 करते हैं. 12 तो हो गया ना, लास्ट क्लास में किया था हमने. 13 इज अ सिचुएशन जहां पे एक बच्चा स्कूल के लिए बस में जाना है. तो दिस इज व्हाट इज बस. यहां पर बस खड़ी है और ये बच्चा घर से भागते हुए आ रहा है. होता है ना, सुबह का टाइम है तो अक्सर लेट होते ही हैं. तो ये बच्चा घर से भागते हुए आ रहा है और अभी वो यहाँ पर था. कितना पीछे? 48 मीटर. और ठीक उस टाइम पे बस ने चलना शुरू कर दिया. एंड बॉय की वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 10. और बस की वेलोसिटी कितनी है? 0. एंड बस ने 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया. सिचुएशन समझ में आ गई कि क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भागता हुआ आ रहा हूँ, सामने बस है, अभी मैं इस जगह पे हूँ, बस ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं भाग रहा हूँ क्योंकि भाग के पकड़ना है. तो ये बॉय भाग ही रहा है लेकिन बस चलने लगी. तो अब मान लेते हैं वो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है. अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, with an acceleration of 1 meter per second square. Is it? तो मान लो ये बस भी चलती गई और यहां से ये बॉय भी चलता गया. एंड एट दिस पॉइंट पकड़ लिया. एट दिस पॉइंट पकड़ लिया. लेट अस सपोज
during this period time has passed t and bus has traveled the distance s. बस ने s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और टोटल टाइम कितना पास हो गया t. अभी यहां तक समझ में आया? हाँ जी, Yes, sir. ओके. अब हमको कैलकुलेशन करनी है, दोनों के लिए अलग अलग करेंगे. फॉर बॉय इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. एंड बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बस पकड़ने तक? 48 प्लस s. हाउ मच? 48 and plus s. So boy has traveled a distance 48 plus s and that is with speed 10 in time t. So this is one equation we get by the motion of boy. बोलो यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया? रिया, स्मृति, जिया, धनुश्री? कैसा है? हाँ So ये 10 कैसा है? हाँ, distance is velocity into time. बॉय की वेलोसिटी कितनी है? 10. Yes, sir. और टाइम तो हमने मान लिया, टोटल टाइम कितना लगा? t. ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Right. Now for बस का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है. बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s. इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 into t square, that is s is equal to half t square, right? यहाँ पर बस एक्सेलरेटेड है, तो बस का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो तो हम एक्सेलरेटेड मोशन से निकालेंगे. s is equal to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बॉय का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो हम यूनिफॉर्म मोशन से कैलकुलेट करेंगे. ओके हाँ, अभी इतना समझ में आ गया? Yes, sir. सबको आ गया? Yes, sir. Yes, sir. राइट. नाउ अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो s की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. 48 प्लस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t. तो t स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम लिया तो 96 इज इक्वल टू 20t. तो t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो. माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0. t को कॉमन लिया तो t माइनस 12 माइनस 8 कॉमन लिया तो t माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो आंसर आया t माइनस 8 इंटू t माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 8 एंड 12. दो टाइम आएंगे. अब आप इसको ध्यान से देखो, समझो, कुछ भी पूछना है तो पूछो. मेक द थिंग क्लियर फर्स्ट एंड देन मूव अहेड. हमको जल्दी कोई नहीं है. सर ये क्वेश्चन एक और बार समझा दो देखो.
क्या चीज? ये तो इक्वेशन आई थी ना यहाँ से, s की वैल्यू मैंने यहाँ से s की वैल्यू इसमें प्लेस कर दी, तो ये हो गया 48 प्लस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t, और फिर 2 से मैंने एलसीएम ले लिया या मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये टी स्क्वायर, ये 96 और ये 20t। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? Sir, M2 sir. अच्छा, इसमें ओके चलो वो तो मैं बताता हूँ। अब 14 भी तो पूछ रहे थे इसमें मेरे से, 14 भी पूछा था ना किसी ने। ये नोट कर लिया? Yes sir. Right. Now 14 question. What is given initial velocity? कितना? 10. And what is given acceleration? In fact, it is not acceleration, it is given retardation. So a is equal to -2. We have to find fifth second distance. तो वो nth सेकेंड वाला किया था ना हमने, S5 निकालना है हमें। तो S5 इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2n माइनस 1, यही होता है ना Sn इज इक्वल टू। तो S5 इज इक्वल टू U कितना दे रखा है 10 माइनस 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, तो दैट इज 10 माइनस 9 and this is 1 meter. So that is the distance traveled in fifth second. Okay. अब ये सब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो गए हैं ना? क्वेश्चन नंबर 20 सब्जेक्टिव में, ये तो डिफरेंशिएशन से करते हैं हम, ठीक है। बट वैसे व्हाट यू कैन डू इज इसको स्क्वायर कर लो दोनों साइड, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कंपेयर कर लो तो भी आ जाएगा। ओके, अब मैं डिटेल में तब बताऊंगा जब मैं दूंगा करने के लिए, राइट। चलो एमसीक्यू का प्रॉब्लम्स बोलो। Sir, third question. थर्ड, Yes sir. फर्स्ट और सेकंड हो गया? Yes sir. फर्स्ट एंड सेकंड सबका हो गया? समृद्धि, जिया, निपुण, बाकी लोग भी बोल दिया करो कभी कभी। Yes sir. Yes sir. ठीक है, सो थर्ड करूं मैं। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल मल्टीप्लाइड द मिनिमम डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाय। स्पीड को ट्रिपल कर देंगे तो रोकने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट केस, इनिशियल वेलोसिटी
u1 इज इक्वल टू u एंड s1 मान लो s, ठीक है, और a1 मान लो माइनस ए, रोकना है तो, और v1 कितना हो गया 0, ठीक है। इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो कितना हो गया 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. That was the first case. Now what is there in the second case? स्पीड ट्रिपल हो गई, तो केस फर्स्ट था. सेकेंड केस u2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स u एंड s2 हमें निकालना है, एंड a2 तो वही है माइनस ए, एंड v2 भी 0 हो जाएगा. इतना समझ में आया? अब फिर वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as2. दिस इज माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा. 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as2, और u स्क्वायर कितना था? u स्क्वायर यहां से रख दो, 9 इंटू 2as इज इक्वल टू 2as2, 2a कैंसिल हो गया, तो s2 इज इक्वल टू 9s. सो दिस विल बी 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है. और आगे से ये ध्यान रखना, मतलब आगे कभी भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी होता है, तो स्पीड को जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर टाइम डिस्टेंस हो जाएगा. यानी अगर हम स्पीड डबल करेंगे तो रोकने के लिए डिस्टेंस 4 टाइम्स चाहिए होगा. अगर ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स करेंगे तो 16 टाइम्स. दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज एडवाइज्ड कि स्लो स्पीड पे चलें. स्लो स्पीड पे चलते हैं तो थोड़ी दूर में गाड़ी रुक जाएगी, फास्ट स्पीड पे चलेंगे तो रोकने में ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा, और फास्ट चलेंगे तो रोकने से पहले टक्कर हो जाएगी ना. गुड. चलो नेक्स्ट बोलो. फोर्थ हो गया. फोर्थ हो गया चैतन्य? Yes, sir. हो गया फोर्थ. Yes, sir. आदित्य? Yes, sir. राइट. निपुण? Yes, sir. हो गया फोर्थ. Yes, sir. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्टेड टू. मुझे लगा नहीं कि ऐसे हो जाएगा. चलो फिर भी मैं कर देता हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. एक स्टोन को ड्रॉप किया एंड लास्ट सेकेंड में इसने कितना चला? 25 मीटर लास्ट सेकेंड में. तो लास्ट सेकेंड इज 1 सेकेंड है ना. तो हमको निकालना है टोटल हाइट ऑफ टावर. टोटल हाइट निकालना है. तो ये मान लो टोटल हाइट h है और टोटल हाइट t टाइम में कवर की. तो ये कितनी बच गई? h माइनस 25, और ये कितने टाइम में कवर हुई? t माइनस 1 टाइम में. So if I do A to B, that is h minus 25 is equal to 0 हो जाएगा. यू तो हाफ g
t minus 1 square. That is equation first. And if I do a to c, तो h is equal to 0 plus half g t square. ठीक है, अब ये h की वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं, कर दे, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 2t प्लस हाफ जी. अब इसमें g की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी डालूं, 10, तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 25. एक मिनट, ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया माइनस 25 एंड ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 10t और प्लस 5, तो 10t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आया, राइट. अब ये t की वैल्यू इसमें डाल दो, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 45 मीटर. ओके, आप लोगों ने कैसे किया? मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं. हाँ, मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, करके दिखाऊं. मान लो ये लास्ट सेकेंड nth सेकेंड है और मैं फॉर्मूला यूज करता हूं एच एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2n माइनस 1. तो दिस इज 45, 0 प्लस 10 बाई 2n माइनस 1. सो दिस इज 10 बाई 2, तो 5, तो 5, तो 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 3, यानी टोटल टाइम 3 हो गया. तो 3 सेकेंड में वो कितना गिरेगा वो निकाल लो. h इज इक्वल टू हाफ g इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 45. दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट. ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. हम बाकी लोगों को समझ में आया? चलो नेक्स्ट बोलो. कौन सा बोल रहे थे? 6th, 7th. अच्छा, बाकी का किसी को कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है. और वैसे भी आज तो कंप्लीट होंगे भी नहीं. 7th क्वेश्चन. एक बस 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और एक स्कूटर उसको ओवरटेक करना चाहता है. कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्कूटर वाला बस को ओवरटेक करेगा. चलो, ये एक बस है और ये स्कूटर है और ये इससे 1000 मीटर दूर है. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दूर. और उसको कितने टाइम में करना है? 100 सेकेंड में. एंड बस की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बस इज 10 एंड वेलोसिटी ऑफ स्कूटर हमें निकालनी है. एंड टाइम टोटल कितना है? 100 सेकेंड. तो देखो, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो
ये सपोज यहाँ जाके पकड़ लेंगे, तो स्कूटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मान लो s डिस्टेंस है, तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पकड़े जाने से पहले s, और स्कूटर ने कितना किया 1000 प्लस s। इट इज समथिंग लाइक दैट ना, ये बस है ये स्कूटर है। अब ऐसे तो है नहीं कि बस वाला वेट करेगा कि स्कूटर वाला मुझे आके ओवरटेक करे, बस वाला भी चलता जा रहा है, तो बस वाला चलते चलते यहाँ पहुँच गया, स्कूटर वाला भी चलते चलते यहाँ पहुँच गया, तो दोनों यहाँ पे ओवरटेक कर दिया। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा वो लगा 100 सेकेंड। ठीक है, अब सोचो फॉर बस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी 10 और टाइम कितना 100, तो s इज इक्वल टू 1000। एंड फॉर स्कूटर s प्लस 1000, स्कूटर ने कितना डिस्टेंस चला 1000 और ये प्लस s, किस वेलोसिटी से मालूम नहीं, कितने टाइम में 100 टाइम सेकेंड में। अब हमारे पास s ऑलरेडी आ चुका 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू us इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, a train accelerate from rest for time t1 and then retard for time t2 and come to rest, तो रेशो ऑफ t1 t2 निकालना है। ये एक ट्रेन रेस्ट से चली t1 टाइम के लिए a1 अल्फा एक्सेलरेशन से चलती गई, a पॉइंट से चली, b पॉइंट पे पहुंच गई, फिर रिटार्ड होने लगी, और कितने टाइम रिटार्ड हुई t2 से, और रिटार्डेशन कितना है बीटा, तो मैंने माइनस लिख लिया क्योंकि ये रिटार्डेशन है, और यहाँ पे जाके फिर रुक गई, है ना, a से b, b से c, और फिर रुक गई। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। उसके लिए हम यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v, मान लेते हैं फॉर मोशन a टू b अगर हम बात करें तो वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी 0 अल्फा t1, तो इससे हमारे पास आ गया t1 इज v बाई अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। अब मोशन a टू b टू c चल लो, फॉर मोशन b टू c, अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, रिटार्डेशन बीटा, टाइम t2, तो v इज इक्वल टू बीटा t2, तो t2 कितना आ गया v अपॉन बीटा। अब आपको निकालना है क्या t1 बाई t2, t1 इज v बाई अल्फा, t2 इज v बाई बीटा, सो दैट इज बीटा अपॉन अल्फा, this is beta upon alpha, okay।